बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, class 9. Today we will learn unit 3 logarithms. We will learn topic 3.2 concept of logarithm, and we will solve exercise number 3.2. Logarithms. Students, logarithms are the useful tool for accurate and rapid computations. Logarithm with base 10 are known as the common logarithms, and those with base e are known as the natural logarithms. We shall define the logarithms with base a is greater than 0 and a is not equal to 1. Students, logarithm of a real number. If a raised to power x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a, and it is written as log a y is equal to x, where a is greater than 0 and a is not equal to 1 and y is greater than 0. स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो फॉर्म है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर ये जो x है ये लॉग है किस नंबर का? y का, विद बेस a, वेयर a is greater than 0 and it is never equal to 1. एंड स्टूडेंट्स, आपके पास जो y है, y आपके पास ग्रेटर देन 0 है. लाइक y आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है. एट दिस स्टेज इन क्लास 9 यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर. That is, the logarithm of a number y to the base a is the index of x to the power to which a must be raised to get that number y. Now students, the relation a raised to power x is equal to y and log a y is equal to x are equivalent. Like आपके पास ये two forms है. This form is known as the log form and this form is known as the exponential form. Students, when one relation is given, it can be converted into the other. Like आपके पास log form है तो आप इसको exponential form में convert कर सकते हैं, और अगर आपके पास exponential form है तो it can be written as into the form of log form. Now students, it means that कि आप दोनों forms के आपके पास equivalent है. दोनों forms में आप दोनों form में किसी में भी एक को convert कर सकते हैं. Now students, the definition of common logarithm. Students, in numerical calculation, the base of logarithm is always taken as 10. Like आप जब numerical calculation करते हैं log की, तो इसकी base आप क्या लेते हैं? It is always taken 10. These logarithms are called the common logarithms. Like वो logarithms जिनमें हम base 10 लेते हैं, these logarithms are known as the common logarithms. For example, log 10 to, like log 2 with base 10 is equal to 0.3010. Now students, characteristic of a logarithm of a number. Students, the integral part which is positive for a number greater than 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of a logarithm of a number. Like आपके पास एक नंबर है 2, आपने उसका लॉग लिया, लॉग लेने से आपके पास क्या आया? 0.3010. सो इस इंटीग्रल पार्ट इज 0. स्टूडेंट्स, आपके पास जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी ये क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर. हेयर इज कैरेक्टरिस्टिक इज 0. आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. Now students, what do you mean by the mantissa of logarithm of a number? Like mantissa आपके पास क्या होता है? Students, a decimal part which is always positive is called mantissa of logarithm of a number. Students, after taking the log of a number, जो आपके पास decimal part होता है वो क्या कहलाता है? logarithm, mantissa of the logarithm. Like आपके पास number था 2 with base 10 और आपके पास इसका log क्या आया था? 0.3010. then the mantissa is 0.3010. like the decimal part, point के बाद वाला जो part होगा, जो decimal part होगा, it is known as mantissa of the logarithm of a number and it is always a positive number. ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. mantissa हमेशा हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है. Students, now we are going to start exercise number 3.2. Question number 1.
फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो नंबर होंगे हम उनका लॉग फाइंड आउट करेंगे। हेयर वी हैव द नंबर 232.92 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स कॉमन लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 232.92। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x is equal to log 232.92। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी नंबर का जब आपने लॉग कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, आपके पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, 2 के बाद है, और आपके पास पॉइंट कहाँ है, 2 के बाद है। लाइक आपने ये पॉइंट, कितने पॉइंट पीछे लेके आना है, 2 पॉइंट्स। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स मेंटीसा। आपको मेंटीसा के लिए लॉग टेबल की हेल्प की जरूरत होगी। हेयर वी हैव द लॉग टेबल। स्टूडेंट्स, आपने लॉग टेबल में वैल्यू को किस तरह से देखना है, आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने हैं नंबर के, वो क्या है, 23। आपके पास क्या है, 23, और 23 के बाद आपके पास क्या है, 2। स्टूडेंट्स, आपने ये फर्स्ट कॉलम में 23 पर, लाइक हेयर इज 23, और 23 के बाद आपके पास नंबर क्या था, 2, और आपने ये कॉलम, ये जो आपके पास 2 का कॉलम है, आपने इसमें आ जाना है। लाइक 23 और 2 के बिल्कुल ऑपोजिट देखें, आपके पास नंबर क्या है, 3655। हेयर वी हैव द नंबर 3655। आपके पास, आपने किस में देखा, टेबल में 23 को 2 में देखा, और आपके पास नंबर क्या है, 3655। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर नंबर आपके पास फिनिश नहीं होता, आपके पास आगे क्या है, 9। इसका मतलब आपने अब इस नंबर को किस में देखना है, 9 से आपने लेना है इसका मीन डिफरेंस। लाइक स्टूडेंट्स, आपके पास सेम इसी आप रो में रहेंगे, 23 की रो में, और आपके पास ये जो नेक्स्ट है इसमें लाइक 9 यहाँ पर राइट है, आपने 9 में आना है, और आपने 23 में, 23 और 9 के बिल्कुल सामने देखें, इनके क्रॉस में कौन सी वैल्यू आ रही है, 17। ये आपका मेन डिफरेंस है, और आपने 17 को ऐड करना है इस नंबर में, लाइक 3655 में। जब आपने 3655 में 17 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया, 3672। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज योर मेंटीसा पॉइंट 3672। इट इज द लॉग ऑफ द नंबर 232.92। Now students, part number 3. Here we have the number 0.0032 and we are going to calculate its log. तो students, first of all let कर लेंगे, x के इक्वल है, log लेंगे both sides पर। Now students, log लेते, किसी भी नंबर का log लेना है तो first you have to write the characteristic. स्टूडेंट्स, आपके पास रेफरेंस पोजीशन किसके बाद है, 3 के बाद है, तो कितने पॉइंट्स आप पीछे लेकर आ रहे हैं, राइट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट किया था, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पॉजिटिव था, जो आपके पास क्या आया था, 2। बट नाउ यू आर शिफ्टिंग द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप पॉइंट को लेफ्ट टू राइट पर शिफ्ट करेंगे तो आपका पॉइंट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। सो स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट हम पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी 4 बार। 4 बार मीन्स -4। ये -4 के कैरेक्टरिस्टिक को राइट करने की एक टाइप है, लाइक आप इसको लिखेंगे 4 बार। बार किसको कर रहा है, कि इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। बिकॉज जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि लॉग में जो मेंटीसा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एक नेगेटिव नंबर भी होता है, एक पॉजिटिव नंबर है, और इट कैन बी 0। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मेंटीसा। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव 32। लाइक आपके पास ये जो डिजिट्स हैं 2 के हैं, 3 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है आपके पास, इसका मतलब हम 3 2 को किस में देखेंगे, 0 में। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 है, और 3 2 को जब आपने 0 में देखा तो आपके पास क्या आया, 5051। अब जाहिर सी बात है, आपके पास 3 2 के बाद भी कोई डिजिट नहीं था, और जाहिर सी बात है उसके बाद भी कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका मीन डिफरेंस नहीं लेंगे, तो आपके पास क्या आया, 5051। ये आ गया आपके पास स्टूडेंट्स मेंटीसा। सो द लॉग ऑफ 0.0032 इज 4 बार .5051।
0.051. Now students, we are going to solve the question number 2. If log 31.09 is equal to 1.4926, find the values of the following. Here we have part number 1, 2, 3 and 4 without using tables. Students, अगर आप observe करें, here we have 31.09, like अगर सिर्फ digits की बात करें 3109, part number 1 में भी 3109, in 2 3109, in 3 3109, in part number 4 3109, and we are going to find its log without using tables. Students, हम log लेंगे 3.109 का. तो जब आपने किसी भी नंबर का log लेना होता है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट्स करेक्टरिस्टिक. आपके पास रेफरेंस पोजीशन किधर है? 3 के बाद. अगर आपकी रेफरेंस पोजीशन जहां पर हो और आपका पॉइंट भी वहीं पर हो, डेसिमल पॉइंट भी वहीं पर हो, तो इसका मतलब उसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा? 0. नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द लॉगरिथम्स ऑफ द नंबर हैविंग द सेम सीक्वेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स have the same mantissa. For example, the mantissa of log of number 0.002347 and 02347 is 0.3705. Students, आपके पास ये एक स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी भी ऐसे नंबर्स का लॉग लेते हैं जिनमें सेम सीक्वेंस हो सिग्निफिकेंट डिजिट का, लाइक आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस क्या था? 3109. यहाँ पर भी क्या है? 3109. सेम 3109. हेयर वी हैव 3109. और आपके पास पार्ट नंबर 4 में भी क्या है? 3109. तो उनका मेंटीसा क्या होता है? सेम होता है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास log 31.09 का मेंटीसा ऑलरेडी गिवन है. इट इज 4926. सो स्टूडेंट्स, इस नंबर का आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0. और इसका मेंटीसा क्या होगा? 4926. इट इज योर आंसर. नाउ पार्ट 2. अब स्टूडेंट्स, आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं 310.9. तो आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? आपके पास रेफरेंस पोजीशन है 3 के बाद. अपना पॉइंट 2 पॉइंट पीछे मूव करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2. एंड वी नो दैट द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैव द सेम मेंटीसा, सो इट्स मेंटीसा विल आल्सो बी 0.4926. Now students, the part number 3, 0.003109. आपके पास सिग्निफिकेंट, आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या है? 3 के बाद है. अपना पॉइंट 3 लेफ्ट से राइट मूव करेंगे. जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? बार में आएगा. तो इट विल बी 3 बार, बिकॉज आपके पास सीक्वेंस सेम है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, तो इसका मेंटीसा सेम होगा. तो इसका मेंटीसा भी क्या होगा? 4926. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इट्स पार्ट नंबर 4, log 0.3109. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास ये नंबर है और इसके जो सीक्वेंस है सेम है. इसका मतलब आपके पास मेंटीसा इसका भी वही आएगा. और आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? रेफरेंस पोजीशन आपके पास क्या है? 3 के बाद है. इसका मतलब 1 पॉइंट आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा? 1 बार. और मेंटीसा सेम वही रहेगा 0.4926. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. The find the numbers whose common logarithms are 3.5621. स्टूडेंट्स, अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये हमें लॉग गिवन है. हेयर वी हैव द लॉग ऑफ एनी नंबर, लाइक log x इज इक्वल टू 3.5621. बोथ साइड्स पर एंटी लॉग लिया, सो x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621. स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ एनी नंबर, तो हम उसको किस टेबल में देखते हैं? लॉग के टेबल में देखते हैं, वहां से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एंटीलॉग, सो वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल और हम इसको एंटीलॉग के टेबल में देखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो नंबर है जिसका ये लॉग गिवन है, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा? करेक्टरिस्टिक. और ये क्या होगा? मेंटीसा. स्टूडेंट्स, जब भी आप एंटीलॉग लेते हैं तो आपने करेक्टरिस्टिक को फिलहाल नहीं देखना और आप जो टेबल में देखेंगे वैल्यू किसकी देखेंगे? मेंटीसा की. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द एंटीलॉग टेबल एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.56. लाइक 0.56 को किस में देखेंगे? 2 में देखेंगे. 0.56 हेयर इज 0.56 और आप इसकी वैल्यू किस में देखेंगे? 2 के ऑपोजिट, लाइक हेयर इज 2
2 के ऑपोजिट और 0.56 के ऑपोजिट आप वैल्यू देखते हैं, दैट इज 3648। नाउ अब 2 के बाद आपके पास क्या था 1, तो 1 आप देखेंगे इसको मीन डिफरेंस में 0.56 के ऑपोजिट और 1 के ऑपोजिट, इट इज 1, सो वी आर गोइंग टू ऐड 1 इन 3648 एंड इट विल बी इक्वल टू 3649। स्टूडेंट्स आपके पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, 3 के बाद है, इसका मतलब आपका पॉइंट कहाँ होगा, 3 के बाद होगा। और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 3 था, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर था। तो आप अपना पॉइंट क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 2 3। तो राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद आपका पॉइंट क्या आया, एट द एंड ऑफ द नंबर आया। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये एक नंबर है 3649, जिसका आपको ये लॉग गिवन था 3.5621। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 1 बार 0.7427, लॉग एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, 1 बार 0.7427 के इक्वल है, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। तो हम सिर्फ मेंटीसा को देखेंगे, 0.74 को देखेंगे 2 में। स्टूडेंट्स हेयर इज 0.74 और जब हमने इसको 2 के ऑपोजिट देखा तो इट इज 5521। नाउ स्टूडेंट्स अब इसका मीन डिफरेंस देखेंगे 7 में, और इसका मीन डिफरेंस जो 7 में है स्टूडेंट्स इट इज 9 को इसमें ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 5530। अब आपके पास जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ है, 5 के बाद है, और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था 1 बार। 1 बार का मतलब है आप अपना पॉइंट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पर, एक पॉइंट लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे। सो द नंबर विल बी 0.5530। This is the number whose log is given 1 bar 0.7427. Now students do practice review exercise 3 question 4 by yourself. Now students we are going to solve the question 4. What replacement for the unknown in each of the following will make the statement true? Like आपके पास ये जो L है, हमने इसकी L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सिंपल वर्ड्स। स्टूडेंट्स वी नो दैट आप इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं बाय राइटिंग इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म। स्टूडेंट्स बेस वहीं पर रहेगी और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। लाइक 81 L की जगह और L 81 की जगह आ जाएगा। 3 raised to power L is equal to 81। स्टूडेंट्स वी नो दैट 81 आपके पास क्या होता है 3 raised to power 4। इक्वल बेसिस है, इक्वल टू दैट सिंप्लाइज दैट आपके पास पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। So L will be equal to 4. Now students part 2, इसका मतलब इसमें हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A की, लाइक बेस की कैलकुलेट वैल्यू करनी है। स्टूडेंट्स बाय राइटिंग इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म A raised to power 0.5 is equal to 6. Students we know that 0.5 is equal to 1/2. Now students A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर ये 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया, 2 के साथ कैंसिल हो गया। A विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 36। इट इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट log 2 1/28। लाइक log आपने लेना है 1/28 का विद बेस 2। स्टूडेंट्स लेट करेंगे, आपके पास ये log किसके इक्वल है, x के। नाउ बाय राइटिंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, अब एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको राइट किया तो आपके पास बेस की पावर क्या हो जाएगी x, और 1/28 आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड पर। स्टूडेंट्स वी नो दैट 128 क्या होता है आपके पास 2 raised to power 7, और ये जो पावर 7 है अगर इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे तो इसकी जो एक्सपोनेंट का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी 2 raised to power -7। Now students that implies that x will be equal to -7। बेसिस सेम है, इक्वल है, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। सो x will be equal to -7। It is your answer. Now students it's part number 2 log 512 to the base 2 square root of 2। स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि आपके पास log 512 है और इसकी बेस क्या है 2 square root of 2।
तो हमने लेट कर लिया ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स बाय राइटिंग इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर आपके पास क्या आ गई x, और 512 आपके पास आ गया x की रिप्लेसमेंट पे। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट 512 आपके पास क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 9 एंड हियर वी हैव 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2। लाइक आपके पास स्क्वायर रूट क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है 1/2। नाउ स्टूडेंट्स इसकी पावर आपके पास क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 3/2। लाइक इन पावर्स को हमने ऐड किया तो ऐड करने से हमारे पास क्या है 2 रेज़ टू पावर 3/2 एंड होल रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। नाउ स्टूडेंट्स अगर आपके पास पावर की पावर हो तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई, सो इट विल बी इक्वल टू 3x/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। नाउ स्टूडेंट्स बेसिस सेम है, इट मीन्स डेट इनकी पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। सो 3x/2 विल बी इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो 9 के साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1s are 3, 3 3s are 9, so student 3 2s are 6, so the value of x is 6. It is your required answer. Now students we are going to solve the question find the value of x from the following statement. Now students like in questions में हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Here we have log x with base 2 is equal to 5. Students for its solution first we are going to write this number into the exponent form. By writing into the exponent form we get students 2 raised to power 5 is equal to x. Students we know that 2 raised to power 5 आपके पास किसके इक्वल होता है 32 के, so the value of x is 32. Now students part number 2 log 9 with base 81 is equal to x. इस पे भी आप सेम वही करेंगे। फर्स्ट आपने क्या करना है नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। सो 81 की पावर क्या हो जाएगी x विल बी इक्वल टू 9। लाइक ये आपके पास बेस है और 9 और x क्या करेंगे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट 81 आपके पास क्या होता है 9 रेज़ टू पावर 2, लाइक 9 9s are 81। स्टूडेंट्स अब पावर की पावर हो तो क्या होती है मल्टीप्लाई, सो इट कैन बी रिटन एज 9 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 1। लाइक अगर यहाँ पर 9 की पावर कुछ भी नहीं थी तो इसका मतलब इसकी पावर क्या थी आपके पास 1। नाउ स्टूडेंट्स बेसिस सेम है इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी इक्वल, सो 2x विल बी इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स अब x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1/2। Now students we are going to calculate the value of x for log 64 with base x is equal to 2. First of all we are going to write this into the exponent form. So x raised to power आपके पास क्या आ जाएगा 2 and is equal to 64. बेस आपके पास अपनी जगह पर रहेगी और 64 2 क्या करेंगे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। Now students we know that 64 means 8 square. Students x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपके पास यहाँ पर क्या x का स्क्वायर है, सो वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 8। नाउ स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 3। Take care and Allah Hafiz.